Hello and welcome to our online service. हमारे ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। What a joy it is to see you and share God's word with you. हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आपको देख के और परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने में। Today I want to speak with you on a very important, necessary subject. आज हम एक बहुत जरूरी एक शीर्षक पे बात करेंगे। Being grateful or being thankful. कैसे हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। In fact, I want to title my sermon like this: Graduating in Gratitude. आज मैं अपने संदेश का शीर्षक ऐसे देना चाहता हूँ कि कैसे शुक्रगुजारी में हम एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। I believe most of you who are listening to my sermon are graduates or you're working towards your graduation. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जिन लोगों से आज बोल रहा हूँ उन्होंने कोई डिग्री अपने जीवन में प्राप्त की होगी या करने जा रहे होंगे। So the question I want to place before you is not if you graduated your bachelor's or your master's or your PhD even, but have you graduated from this school, the school of gratitude? आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या हो सकता है कि पीएचडी में भी अपनी डिग्री प्राप्त की हो, लेकिन आज मैं उस स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमें शुक्रगुजारी के बारे में सिखाएगा। Have you developed a thankful spirit? क्या आपने एक शुक्रगुजारी की आत्मा को अपने जीवन में बनाया है? If you have your Bibles, turn with me to the book of 1 Thessalonians, chapter 5 and verse 18, and I'll read it for you. पहला थेसलोनियों 5 उसका 18। Let me read it. In everything, emphasis, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। I feel we as a generation have a spirit of entitlement. मैं सोचता हूँ कि आज की पीढ़ी जो है वो सोचते हैं कि वो हर चीज के एक हकदार बन गए हैं। I heard about the story about a guy who was walking very sad and looked like he was depressed. मैंने एक जन के बारे में कहानी सुनी जो बहुत ही दुखी और परेशान था। One of his friends met him and said, "Hey, why are you so sad?" एक दोस्त उनसे मिले और उन्होंने कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? He said, "Last Monday, my great grandfather died. उन्होंने बोला कि जो मेरे दादाजी थे या परदादाजी थे उनकी मृत्यु हो गई And he left me an inheritance of over 1 crore. और उन्होंने मेरे पास एक जमीन या हकदार छोड़ा है मेरे 3 लिए। days later, my great aunt passed away. और कुछ ही दिन पहले मेरी कोई आंटी उनकी मृत्यु हो गई। She had no children, so she also gave me an inheritance of 75 lakhs. और उनकी भी मृत्यु हो गई और उन्होंने भी मेरे को 75 लाख रुपए का इनहेरिटेंस दिया। Just 2 days before, another uncle of mine passed away. 2 दिन पहले एक और अंकल गुजर गए And he also gave me an inheritance of 50 lakh. और उन्होंने भी मुझे 50 लाख रुपए इनहेरिटेंस में दिए। Then his friend asked him, "Hey, if all these things happened, why are you so sad?" तो दोस्त ने पूछा अगर ये सब तुम्हारे जीवन में हुआ है तो तुम दुखी क्यों हो? He said, "Because no one has died today." उनका जवाब था कि आज कोई नहीं मरा इसलिए। He did not have a thankful spirit. उनके अंदर शुक्रगुजारी की आत्मा नहीं थी। As I said, we as a generation, we're becoming more and more entitled. हम लोग आजकल की जो पीढ़ी है वो हर बात के लिए हकदार जैसे बन गए हैं। We expect good grades without studying.
जो चाहते हैं कि बिना पढ़े ही उन्हें अच्छे ग्रेड मिल जाए। We demand a pay raise even though we might not deserve it. हम अपनी तनख्वाह में मांगते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और पैसे मिले। Don't worry, I'm not talking about you. I'm talking about other people. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं औरों के बारे में बात कर रहा हूँ। But I realized more than ever today we need to develop a spirit of gratitude. इसलिए और पहले से भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि एक शुक्रगुजारी की आत्मा हम अपने जीवन में बनाएं। This week, America will be celebrating a very important holiday. इस हफ्ते अमेरिका देश में एक बहुत अच्छा एक त्योहार मनाएंगे। It's called Thanksgiving. उसे कहते हैं गुजारी करना। Now, I'm not advocating we celebrate an American holiday, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उस देश का जो त्योहार है उसे मनाना है, but there is an important lesson we can learn from it, and that is to be thankful. और उससे हम एक अच्छा संदेश सीख सकते हैं और वो है विश्वास योगी रहना। So I want to give you a few points today to encourage you to develop a spirit of gratitude. इसलिए मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स दूंगा कि कैसे आप एक शुक्रगुजारी की आत्मा अपने जीवन में बना सकते हैं। Why we need to have gratitude? क्यों हमें शुक्रगुजार होना जरूरी है? Number one, पहला, gratefulness produces a sweet, pleasing aroma. शुक्रगुजारी या आभारीपन एक मीठा मन भावक सुगंध उत्पन्न करती है। The Bible says like this in Psalms chapter 100 and verse 4. It says, enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। The Bible says when you enter into God's presence, when you enter his gates, enter with thanksgiving. बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के समूह आते हैं तो हमें आनंदित होके शुक्रगुजार होके आना चाहिए। That means come with a grateful heart, come with a thankful heart. इसलिए हमें एक शुक्रगुजार हृदय या एक खुशी वाला हृदय के साथ परमेश्वर के घर आना है। A grateful spirit is very attractive and has a pleasant smell to it. जो शुक्रगुजारी की जो आत्मा है वो बहुत आकर्षित होती है और उसमें से एक बहुत अच्छी सुगंध आती है। It's a pleasing aroma before the Lord. वो एक ऐसी सुगंध है जो कि परमेश्वर को खुश कर देती है। It's a pleasing aroma for everyone around you. वो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके लिए एक मन भावक सुगंध उत्पन्न करती है। Have you ever been around people who have these amazing perfumes and smells about them? They just smell so good. क्या आप उन लोगों के साथ रहे हैं जिनमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमेशा ही उनमें से अच्छी सुगंध आती है? It's a delight to be around them. एक आनंद की बात होती है उनके साथ समय बिताना। But then you get around some people who don't smell too good. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अच्छी खुशबू नहीं आती। And you don't want to be around them. आप उनके चारों तरफ नहीं होना चाहते। Come on, you know what I'm talking about. आप जानते हैं मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। People who have bad hygiene. जिनके पास अच्छी स्वच्छता नहीं है। People who don't brush their teeth. लोग जो अपने दांत नहीं मलते हैं। People who don't believe in taking showers. जो नहाने में विश्वास नहीं करते। The more they come close, the more you go back. जितना वो आपके करीब आते हैं आप उतना ही पीछे हटते हैं। In the same way, when you come into God's presence with a thankful heart, God says, I like it. जब आप
परमेश्वर के समूह आते हैं एक शुक्रगुजार हृदय से, तो परमेश्वर कहते हैं मुझे ये पसंद है. This person's life is a pleasing, acceptable, fragrant offering. इस जन का जो जीवन है वो मन भावक या सुगंधित या स्वीकार्य जैसी एक भेंट है. What's the opposite of grateful? Being complaining, murmuring, grumbling. और शुक्रगुजारी का उल्टा मतलब क्या है? वो है शिकायत करना, कुड़कुड़ाना. You have a cynical attitude. आपके पास एक ऐसा स्वभाव होता है जिसमें आप सिर्फ गलती ही देखते हैं. Well, you're happy now. अरे तुम खुश हो. Wait, life is going to give you some lemons. रुक जाओ, जीवन में कुछ कठिन समय जरूर आएगा. When you have a cynical attitude, it's like you haven't taken bath for a month. You haven't brushed your teeth. It's a bad aroma. जब आप ऐसा स्वभाव रखते हैं जिसमें आप सिर्फ बुराई ही देखते हैं, तो वो उस समान है जिसकी तरह जैसे कि आपने नहाए नहीं होंगे और उसमें से बू आती है. If you come into God's presence with that type of attitude, God's going, "Whoo, what's that smell?" जब आप इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर कहते हैं ये कैसी बदबू है. Even we don't like to be around people who whine all the time. जब हम पसंद नहीं करते उन लोगों के साथ रहना जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं. See, God expects gratefulness from us. परमेश्वर हमारे में से आभारीपन या शुक्रगुजारी की आत्मा चाहते हैं. That's why the Bible says when you come into God's presence, come with a grateful heart, with a thankful heart, come with praise. इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के समूह हमें शुक्रगुजारी के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ आना चाहिए. In the Bible, we read a story where Jesus heals 10 lepers. बाइबल में हम एक कहानी देखते हैं जहां यीशु मसीह 10 कोढ़ी लोगों को कैसे चंगा करते हैं. And he almost lingers around that place to see if those 10 lepers, if any of them would come back. और परमेश्वर उनको चंगा करने के बाद वहाँ थोड़े समय के लिए रुके हुए हैं देखने के लिए कि कोई उन्हें उनके पास वापस आएंगे उन्हें शुक्रिया अदा करने. And out of those 10 lepers, only one came back. और उन 10 लोगों में से कोड़ के से चंगाई पाए हुए लोग सिर्फ एक जन वापस आया. And Jesus asked them, "Where are the other 9?" और परमेश्वर ने उनसे पूछा कि बाकी 9 कहाँ हैं. Sometimes some Christians are like those 9 lepers. कई बार परमेश्वर के लोग उन 9 कोढ़ी के समान हैं. They want God's blessings. उन्हें परमेश्वर से आशीष चाहिए. They want God's goodness. उन्हें परमेश्वर की भलाई चाहिए. But once they have received it, they don't come back to thank God. जब उन्हें परमेश्वर से मिल जाता है तो वो परमेश्वर के पास फिर वापस नहीं आते शुक्रिया अदा करने. God's not on their mind anymore. परमेश्वर उनके हृदय में या दिमाग में नहीं होते. They have not graduated in gratitude. They have failed. उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं करी है शुक्रगुजारी में, वे असफल हुए हैं उसमें. See, when we need something from God, we search Him with fervency. जब हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए होता है तो हम पूरे हृदय या पूरे मन से परमेश्वर को ताकते हैं. But do we come back and thank Him for His goodness? लेकिन क्या हम वापस आके परमेश्वर की भलाइयों के लिए हम क्या धन्यवादित होते हैं? Do you prioritize God's house, God's presence? क्या आप परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर की आत्मा को क्या प्राथमिकता देते हैं? Do you have a grateful heart, a thankful heart, and you say, "Wow, Sunday's come. I can't wait to come to church and praise God and thank God." क्या आपका हृदय इतना शुक्रगुजार है कि जब संडे को परमेश्वर के भवन में आना होता है तो क्या आप उत्साहित होते हैं आने के लिए? Are you an ungrateful person, unthankful person? Well, what's the big deal? I missed one Sunday. I'll catch up next Sunday. No, that's like a bad aroma.
या आप ऐसे जन हैं जिनमें कोई शुक्रगुजारी नहीं है और वो कहते हैं अरे एक ही तो संडे है कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं अगले संडे चला जाऊंगा। Are you like that one leper who came back and thanked God? Or are you like those 9 lepers who received the blessing and went their way? आप क्या उस एक जन के समान हैं जिसने चंगाई पाई और परमेश्वर के पास आए धन्यवाद करने, या उन 9 के समान जो चंगाई पाके चले गए? We need to learn to come and give thanks. हमें आना है, सीखना है कैसे आके परमेश्वर को धन्यवाद करना। Has God been good to you? क्या परमेश्वर आपके लिए भले काम करे हैं? Has God done something amazing in your life? क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई अद्भुत काम किया है? Write a testimony. Give Him the praise. एक गवाही लिखें और परमेश्वर से उससे स्तुति करें, Share it with others. औरों के साथ बांटें। Give a thanksgiving offering. एक धन्यवाद की एक भेंट दें। Find opportunities to thank God. मौके ढूंढे परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए। I hope this is going into you today. मैं विश्वास करता हूँ ये आपके हृदय तक जा रहा We है। don't want to be people who just say, God bless me, bless me, bless me, bless me. हम वैसे लोग नहीं होना चाहते हैं जो सिर्फ कहते हैं मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, And then after God blesses you, you're like, God, who? You know? और जब परमेश्वर आशीष दे देते हैं तो फिर हम पूछते हैं परमेश्वर कौन? Now have a thankful heart. एक धन्यवाद का हृदय होना आप में जरूरी है। Don't just thank God. सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद ही ना Be करें, thankful to people around you. उन लोगों के साथ भी धन्यवादित हो जो आपके साथ हैं। Have you thanked your mother for taking care of you? क्या अपनी माता को आपने धन्यवाद कहा है जो आपका ध्यान रखती हैं? You were just always sitting there at home and eating like a pot that has no limit? आप उस जन के तरह हैं जो बस खाते ही रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। Have you thanked your wife? क्या आपने अपने पत्नी को धन्यवाद किया है? Have you thanked your husband who makes you such good coffee? या आपने अपने पति को धन्यवाद किया जो कॉफी बनाते हैं? Have you thanked your parents? क्या आपने अपने माता पिता को धन्यवाद किया When है? you are thankful, जब आप धन्यवादित होते हैं it has a pleasant aroma. तो उसमें एक बहुत अच्छी सुगंध होती है। People want to be around you. लोग आपके चारों तरफ होना चाहते It's a हैं। sweet aroma. ये एक सुगंधित एक महक है। The Bible teaches us और बाइबल हमें सिखाती है that gratitude releases the blessings of God. कि जो शुक्रगुजारी है वे परमेश्वर की आशीषों को खोल देती है। That's my second point. ये मेरा दूसरा पॉइंट है। Gratitude releases the blessings of God. धन्यवाद की आत्मा परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में खोल देती है। Now, just like there's a protocol to see the queen, the pope, or the president, or the prime minister, जब हमें रानी से या पोप से या प्रधानमंत्री से जब मिलना होता है तो हमें एक प्रोटोकॉल का पालन करना होता there है। is a protocol to see the King of Kings. राजाओं के राजा को भी देखने के लिए एक प्रोटोकॉल है। And that's what we read in Psalms 100 verse 4. और हमने उसे भजन संगीता 100 उसके 4 वचन में देखा। Enter into his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। A lot of people don't know this secret. बहुत लोगों को ये रहस्य नहीं पता है। When you begin to praise, when you begin to thank God, you begin to activate the wonder-working power of God in your life. जब आप स्तुति आराधना और धन्यवाद करने लगते हैं तो आप एक ऐसे शक्ति को अपने जीवन में शुरू कर देते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं। Amen. The devil wants to hide this truth from your life. जो शैतान है वो ये सच्चाई आपके जीवन से छुपाना चाहता है। But one of the ways to unlock your blessings, to activate God's power, is to praise Him, is to thank Him. और एक जो
चाबी हम देखते हैं जो इन बातों को खोल देता है, वो है स्तुति आराधना करना और परमेश्वर के सामने शुक्रगुजार होना। There's a beautiful song, Praise is the highway to the throne of God. एक सुंदर गाना है जो कि है स्तुति आराधना एक रास्ता है स्वर्ग जाने का या परमेश्वर के सिंहासन के आगे आने का। When you praise, when you are thankful, it's like a 12-lane, 16-lane expressway to God's presence. जैसे कि हम देखते हैं कि 16 रोड जो हम एक्सप्रेसवे में देखते हैं, उस तरीके से स्तुति आराधना का एक रास्ता है। We heard so many wonderful testimonies this year. हमने बहुत ही सुंदर गवाहियां सुनी इस साल। What we do sometimes, instead of being thankful, we complain and we grumble and we murmur. कई बार हम शुक्रगुजार होने की जगह कुड़कुड़ाते हैं या अपने जीवन में रोना धोना करते हैं। This is what the children of Israel did. यही इजरायली देश के लोगों ने किया। God did so many miracles for them, time and time again. परमेश्वर ने इतनी चमत्कार के काम किए एक के बाद एक। But what did they do? लेकिन उन्होंने क्या किया? Instead of saying thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु कहने की जगह they complained. उन्होंने कुड़कुड़ाया। I want to read a scripture for you from the book of 1 Corinthians chapter 10 and verse 10 and 11. पहली कुरिन्थियों 10 उसका 10 से 11 वचन। And it says, and don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angel of death. These things happened to them as examples for us. They were written down to warn us who live at the end of the age. और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। The Old Testament was written as an example and a warning for us. जो पुराना नियम लिखा गया है वो उदाहरणों के साथ लिखा गया है हमें चेतावनी देने के लिए। Paul is saying they lost so much of the blessings because they complained. पौलुस यह कहते हैं कि उन्होंने कितनी आशीषों को खो दिया कुड़कुड़ाने की वजह से। A whole generation died because they complained. एक पूरी पीढ़ी मर गई क्योंकि वो कुड़कुड़ाए। God had so much for them, but they could not receive all God had because they complained. परमेश्वर ने उनके लिए इतनी सारी बातें या आशीषें रखी थी, लेकिन वो सब खो बैठे कुड़कुड़ाने की वजह से। See, gratitude releases blessings, whereas grumbling stops the blessings. शुक्रगुजारी या शुक्रगुजार होना परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में खोल देता है और कुड़कुड़ाना परमेश्वर की आशीषों को रोक देता है या बंद कर देता है। One of the things that God does not like is complaining, murmuring, grumbling. परमेश्वर का को जो चीज़ पसंद नहीं वो है शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। Joyce Meyer said it beautifully, complain and remain, praise and be raised. जॉयस मायर ने ऐसा बोला है कि कुड़कुड़ाओ और वहीं रहो, आराधना करो और आगे बढ़ो। You know, you've heard this saying, an apple a day keeps the doctor away. आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक दिन में एक सेब खाओ तो डॉक्टर को दूर रखो। My mother has a saying, a praise a day keeps the devil away. मेरी माता ने भी एक कहावत बनाई जो कि है एक दिन में एक स्तुति शैतान को उस दिन के लिए दूर रखती है। When you have a habit of complaining, it's like opening the door in your life for the devil to come in.
कुड़कुड़ाने का ये मतलब है कि आप अपने जीवन में एक दरवाजा खोल रहे हैं शैतान को अंदर आने के लिए। When you're always complaining, you're opening the door and saying, "Hello, Mr. Satan, please come in, have a seat in my life." जब आप शिकायत करते हैं तो आप दरवाजा खोल के कहते हैं, शैतान हेलो, आओ मेरे जीवन में रहो। As a father, what do you think will inspire me more to do good for my daughter? पिता होने के नाते आपको क्या लगता है कि मेरे को खुशी देगा कि जब मेरी बेटी मेरे पास आती है? When she's complaining or when she's grateful? क्या मैं तब ज़्यादा खुश होऊंगा जब वो कुड़कुड़ाती है या जब वो शुक्रगुजार होती है? My daughter just celebrated her 8th birthday last week. मेरी बेटी ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया And we got a lot of presents. और उसे कई सारे तोहफे मिले। Of course, she came up to me, hugged me, said, "Daddy, I love you," and then whispered in my ear, "I love you more than mommy." और कई तोहफों को लेके देख के वो आई और मेरे पास आई और बोली, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। But imagine if she came to us and said, What toy did you get me? I don't like this toy." लेकिन क्या होगा अगर वो मेरे पास आके कहती है, अरे ये खिलौना कैसा खिलौना लिया है, मुझे नहीं पसंद। What kind of gift is ये this? कैसा एक तोहफा है? I would have taken all the gifts she has had, will have, until she learns gratefulness. मैं उसके सारे तोहफे ले लेता जो उसके पास है और जो आने वाले उन सबको लेके बंद कर देता। In the same way, when you come into God's presence with a thankful heart, with a grateful heart, with praise, it's not only a pleasing aroma, it activates the wonder working power of God in your life. उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के समूह आते हैं शुक्रगुजार होके, तो वो उन सारी बातों को खोल देता है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। So no matter what situation you're going through today, instead of complaining and grumbling and murmuring, if you can learn to praise God in the middle of it, be thankful, you will release God's breakthrough power in your life. तो आप जो भी परिस्थिति से होकर अगर आज गुजर रहे हैं, तो आज आप शुक्रगुजार होएं और कुड़कुड़ाना बंद कर दें, क्योंकि शुक्रगुजारी में आप परमेश्वर का ब्रेक थ्रू अपने जीवन में देखेंगे। Amen. Number 3, gratefulness releases you from the bondage of heaviness. जो शुक्रगुजारी है वो आपको भारीपन से जो बंधन है उससे मुक्त कर देती है। Isaiah chapter 61 verse 3 says like this, "To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified." और सियोन कि विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का उखड़ाऊं, जिसके वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। One of the greatest tricks of the enemy is to bring discouragement into God's people. जो शत्रु है उसका एक बहुत बड़ी चाल है कि वो लोगों के जीवन में, खासकर प्रभु के लोगों के जीवन में असफलता या दुखपन या डिसअपॉइंटमेंट लेके आना चाहता है। He wants God's children to walk with a spirit of heaviness, a spirit of sorrow. वो चाहते हैं कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनमें भारीपन रहे और दुख की आत्मा रहे। I believe there are even people here today who are listening to me who are carrying a heavy burden. मैं विश्वास करता हूँ कि कई लोग होंगे आज जो मुझे सुन रहे हैं जो कि एक बहुत भारी बंधन
लेके चल रहे हैं। You're living with the spirit of heaviness over you. आप एक आत्मा जो कि भारीपन की आत्मा है उसके साथ जी रहे हैं। There are times in our life when we go through such experiences that take the wind out of our sail. कई बार हमारे जीवन में ऐसे कठिन परिस्थिति आती है वह उसके समान है जैसे कि हमारे जीवन से जैसे कि हवा चली गई हो। You might have gone through some tough times that has left you with a broken spirit, a spirit of heaviness. हो सकता है कि कठिन परिस्थिति ने आपको उस मुश्किल रास्ते में तोड़ दिया हो और आपकी जो आत्मा है वह टूट गई है। But the word of God says, put on the garment of praise for the spirit of heaviness. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति आराधना का वस्त्र पहन लो और उस वस्त्र को उतार दो जो कि भारीपन का है। In other words, exchange that spirit of heaviness for praises. या दूसरा मतलब है कि उनको बदल दो, दुख की आत्मा के साथ स्तुति की आत्मा के साथ बदल दो। And I'm going to show you how. मैं आपको बताऊंगा कैसे। It is said that in Africa there's a fruit called the taste berry. अफ्रीका देश में एक फल है जिसको हम कहते हैं टेस्ट बेरी। Because it changes a person's taste so much that anything eaten after it becomes sweet and pleasant. और उस फल की खासियत ये है कि वो जो जन उसे खाता है उसका स्वाद बदल देता है और जब भी वो कुछ तीखा या खट्टा खाता है तो उसका जो स्वाद है वो वैसा ही रहता है। Even if you eat something sour, something bitter, hours after eating this taste berry, still it will taste to you sweet and delicious. अगर उस फल को खाने के बाद आप कुछ कड़वा भी अगर खाते हैं कई घंटों बाद भी तब भी आपको उसका स्वाद मीठा लगता है। So just in case you didn't get it yet, it changes your taste so that even the bitter, even the sour things taste sweet. अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप वो खाते हैं फल तो वो आपका स्वाद ऐसे बदल देता है कि चाहे आप कुछ भी खाएं कड़वा या खट्टा उस कई घंटों बाद भी वो स्वाद स्वादिष्ट होता है। Gratitude is the taste berry for Christians. और शुक्रगुजारी या स्तुति करना वो एक टेस्ट बेरी के समान है खासकर परमेश्वर के लोगों के लिए। And when you have a grateful heart, a thankful heart, nothing God sends your way seems unpleasant to you. और जब आप अपना दिल शुक्रगुजारी का रखते हैं तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके रास्ते में आए आपका जो हृदय है वो खुशी और शुक्रगुजार ही रहता है। Hallelujah. Keep the taste berry of gratitude in your hearts and it will do for you what the taste berry did for the Africans. अगर आप इस टेस्ट बेरी को जो कि शुक्रगुजारी की आत्मा है उसे अपने दिल में रखेंगे तो वही वो काम करेगा जो कि हम अफ्रीका देश में जो फल पाया जाता है उसको देख के हम सीखते हैं। So instead of complaining, learn to praise. इसलिए शिकायत करने की जगह आराधना करें। Instead of complaining about your husband or your wife, be thankful. अपनी पति या पत्नी के लिए शिकायत करने की जगह उनके लिए शुक्रगुजार रहें। Thank God you have a husband. Thank God you have a wife. धन्यवादित करें कि आपके पास पति है या पत्नी है। Instead of saying, God, why did you give me this woman? ये कहने की जगह कि मुझे ऐसी औरत क्यों दी। Say, oh God, thank you for giving me such a wonderful woman. और ये बोलें कि परमेश्वर धन्यवाद इतनी अच्छी स्त्री को मेरे लिए देने के लिए। Instead of always complaining about your husband or your wife, well, this man does nothing. He's a lazy bum, always sitting there. Tell him, hey, you're the most wonderful husband in the world, and see how things will begin to change. और अपने पति की शिकायत करने की जगह कि वो हमेशा बैठे रहते हैं, आलसी हैं, कुछ नहीं करते हैं,
धन्यवादित हो कि परमेश्वर ने उनको आपके जीवन में दिया है. Instead of saying to your wife, this dal has no salt, and having the dal put over your head, tell her this is the most delicious meal you have cooked, and see what will happen. अपनी पत्नी को ये कहने की जगह कि दाल में नमक नहीं है और उस दाल को अपने सर में उसके डालने से पहले बोले कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है. Hallelujah. Okay. Ephesians chapter 5 verse 20, it says, and give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. See, gratitude focuses on what you have and not on what you don't have. जो शुक्रगुजारी की आत्मा है वो आपके जो ख्याल हैं उन्हें केंद्रित करती है उन बातों के लिए जो आपके पास हैं और उन बातों पे नहीं जो आपके पास नहीं है. We have so much to be thankful for. हमारे पास बहुत कुछ है धन्यवादित होने के लिए. If you're sitting there saying, well, Pastor, I don't know what to be thankful for. अगर आप वहाँ बैठ के ये कह रहे हैं कि पास्टर मुझे पता नहीं किस बात के लिए शुक्रगुजार होना है. Are you breathing right now? क्या आप सांस ले रहे हैं अभी? Are you alive right now? क्या आप अभी जिंदा हैं? Do you have 2 hands and 2 feet? क्या आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं? That's something to be thankful for. ये कोई चीज है जिसके लिए आपको धन्यवादित होना है. You have good health, good strength, and a good brain, I hope. Well, that's something to be grateful for. आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा शरीर है, तो ये धन्यवादित होना जरूरी है. There's a saying, count your blessings and name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. एक कहावत है कि अपनी आशीषों को गिनो एक एक करके और आप अचंभित हो जाएंगे देख के कि कितनी आशीषें आपके पास हैं. Write down all the blessings God has given you. जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं उन्हें लिखें. The more you begin to thank God and praise God, your perspective will begin to change, and that spirit of heaviness will be broken. जितना ही आप परमेश्वर को धन्यवादित करेंगे उतना ही जो भारीपन की आत्मा है वो टूट जाएगी. The devil wants you to count your problems, but God wants you to count your blessings. शैतान चाहता है कि आप अपनी समस्या को गिने, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आशीषों को गिने. Change your perspective. अपनी सोच को बदल दें. Earlier this year I preached about Paul, how his dream was to go to Rome, but he didn't go to Rome as a preacher, he went there as a prisoner. जब साल की शुरुआत में मैंने पौलुस के बारे में बोला तो मैंने ये बताया कि कैसे वो वहाँ एक प्रचारक की तरह नहीं गए लेकिन उस prisoner की तरह गए. By the time Paul writes a letter to the Philippians, he says, hey, guess what? What I thought was bad, God turned it for good. You know, I've got one of the most powerful Roman soldiers chained to me 24/7. God's given me a great and effective door to preach the gospel in Rome. और पौलुस उसमें लिखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए हर बात को भलाई में बदल दी जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि कठिन है. When you have a grateful heart, even if you're going through a tough trial today, tomorrow you'll be grateful. अगर आप मुश्किल समय से होते हुए भी अगर जा रहे हैं और शुक्रगुजारी की आत्मा रखते हैं तो आपका जो आने वाला कल है वो अच्छा हो जाता है. Tomorrow you look back and say, God, thank you for not answering those prayers. और कल जब आएगा तो आप कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद उन प्रार्थनाओं को उत्तर ना देने के लिए. Thank you for not letting me marry her. Woo! धन्यवाद कि मेरी शादी उससे नहीं हुई. Right now you might be praying, oh Lord, sweetie, 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 give me sweetie in my life. हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे स्वीटी 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 दे अपने मेरे जीवन में. Are you praying, oh Lord, give me Rahul?
या मेरे को राहुल दे। And maybe 10 years later, you look back at that person and say, oh, thank God for not answering that prayer. और 10 साल बाद आप कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद उस प्रार्थना का उत्तर ना देने के लिए। Thank you for not giving me that job. Thank you for not taking me there. God, you knew in all wisdom. या उस नौकरी को ना देने के लिए धन्यवाद, या मुझे उस जगह लेके जाने के लिए ना जाने के लिए धन्यवाद। When you're grateful, it brings perspective. जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो वो जो आपका सोचने का तरीका है उसे वो बदल देता है। I love how Job says it. The Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है जब याकूब कहते हैं कि परमेश्वर देते हैं और परमेश्वर उसे ले भी लेते हैं। One more thought before I move on to my final point. एक और बात को मैं कहना चाहूँगा। This chapter, Isaiah 61, is called the instead of chapter. और ये इज़ाया में जो अध्याय है वो कहता है कि तुम्हारी नाम धाय के बदले दूना भाग मिलेगा। Instead of mourning, God will give you rejoicing. और दुख के बदले परमेश्वर तुम्हें खुशी देंगे। Instead of ashes, He'll give you beauty. राख की जगह वो तुम्हें सुंदरता देंगे। Verse 7 says, instead of shame, He will give you double honor. वो तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। Today I have good news. Heaven is offering a divine exchange today. आज मेरे पास आपके लिए ये खुशखबरी है कि जो स्वर्ग है वो पवित्र अदला बदली करना चाहता है आपके साथ। Just like we read, bring your old phone, walk out with a new iPhone. Heaven is giving you a divine exchange. It's saying, bring your mourning, bring your shame, bring all the things and walk out with the blessings of God. जैसे कि आप एक पुराना फ़ोन लेके आते हैं और उसे नए आईफोन के साथ बदल देते हैं, वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि तुम आओ और अपना दुख, अपनी शर्मिंदी और अपना जो राख है उसको मेरे समूह में खुशी के लिए बदल दो। But I love this part. It says, exchange the garment of praise for the spirit of heaviness. और मेरे को ये भाग बहुत अच्छा लगता है जहाँ वो कहते हैं कि जो ये भारीपन की आत्मा है उसको तुम बदल दो उस वस्त्र के साथ जो कि स्तुति आराधना का वस्त्र है। Tell somebody it's time to change your garments. किसी से कहे समय आ गया है अपने वस्त्र बदलने का। Tell somebody you've been walking for too long with that old garment. किसी से कहे कि तुम बहुत समय से तुम वही पुराने वस्त्र पहने हुए हो। That garment of depression, garment of discouragement. वो डिप्रेशन या दुखपन का जो उसमें है। God's got a new dress for you. God's got a new suit for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक नया वस्त्र रखा है। Just like every day when you get up, you decide what to wear. You decide that day, today I'm not going to wear my garment of complaining. I'm not going to wear my garment of heaviness, but I'm going to put on the garment of praise. जिस तरीके से आप हर सुबह सोचते हैं कि आज मैं क्या पहनूंगा, उसी तरीके से आपको सोचना है कि रोज मैं परमेश्वर का स्तुति का वस्त्र पहनूंगा। In the Hebrew language, it talks about draping yourself completely so there's no holes, no places for the enemy to infiltrate. इब्रानी में जब हम इसका मतलब देखते हैं, उसका मतलब है कि कपड़े को या वस्त्र को अपने पूरे शरीर में लपेट लेना और ऐसे लपेटना कि कहीं से भी जगह ना हो शैतान को अंदर घुसने के लिए। You should be so full of gratefulness that even if a mosquito bites you, it will leave singing, give thanks to the Lord. आपको इतना शुक्रगुजारी में बंद होना चाहिए कि जब मच्छर भी आपको काटे तो वो गाते हुए जाए कि परमेश्वर को शुक्रगुजार करो। Sometimes we need to change our attitude. कभी-कभी हमें अपने स्वभाव को बदलना है। Change our pity party into praise celebration. अपने रोने धोने को बदल के आराधना की जो सेलिब्रेशन है उसमें बदल देना You है। put on the garment of praise. और
स्तुति आराधना का वस्त्र पहन लेना है God will turn your mourning into dancing. और परमेश्वर आपके दुख को नाच में बदल देगा. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन Right, number 4. Praise brings victory and breakthroughs. जो स्तुति आराधना और शुक्रगुजारी है वो विजय और छुटकारा को लेके आती है. What we need to do is take this gratefulness, this thankfulness, and turn it into praise. हमें शुक्रगुजारी को लेके उसे आराधना में बदल देना है. We need to verbalize our gratitude. हमें अपने शब्दों में बोलना है कि कैसे हम शुक्रगुजार हैं. You know how some people say, well, you know my heart. जैसे कई लोग कहते हैं अरे तुम मेरे दिल को जानते हो. I want to tell them, I don't know your heart. I'm not a cardiologist. मैं आपके दिल को नहीं जानता. मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ. Learn to verbalize it. अपने शब्दों में बोलना सीखें. Just like it's important to verbalize your gratitude to people around you. जैसे कि जरूरी है उनको धन्यवादित करना उन लोगों के जो हमारे आसपास हैं. If you haven't yet thanked your parents, thanked your husband, thanked your wife, thanked the people who helped you out, encouraged you, do it today. Thank people. अगर आपने अपने माता पिता पति पत्नी बच्चों को आज तक धन्यवादित नहीं किया तो उन्हें आज जाके धन्यवादित करें. It's important to verbalize. जरूरी है अपने शब्दों में बोलना. That's why again and again you'll read in the Bible, praise the Lord, clap your hands, shout to the Lord. और बाइबल में हम ये बार बार देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना करो, ताली बजाओ और जोर से स्तुति आराधना करो अपने शब्दों में. Why? It's written for people like us who say, well, God knows my heart. वो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि लोग हम आपकी और मेरी तरह हैं जो कि कहते हैं अरे परमेश्वर मेरे दिल को जानते हैं. Yes, God knows your heart, but He wants you to verbalize it. हाँ, परमेश्वर आपके दिल को जानते हैं लेकिन वो चाहते हैं आप अपने शब्दों में बोलें. Hallelujah. See, praise is the key for your turnaround. जो स्तुति है वो एक चाबी है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकती है. Let me quickly introduce you to two award-winning Grammy singers in the Bible, Paul and Silas. मैं आपको बाइबल में 2 ग्रैमी अवार्ड जो गाने वाले या गायक हैं पॉल और साइलस. In Acts chapter 16 verse 25, they were beaten, they are chained from head to foot, and they're put in the back of the prison. और प्रेरितों के काम में देखते हैं कि कैसे उन्हें ऊपर से नीचे तक जंजीरों में बांध रख के जो प्रिजन है उनमें सबसे पीछे उन्हें बंद कर रखा है. What did Paul and Silas do? They didn't go crying, oh God, we served you so faithfully and you put us in prison. God, where are you? और वो रोए धोए नहीं कि परमेश्वर हम आपकी सेवा करते हैं और आपने हमें यहाँ के लाके बंद कर दिया है. No, in the middle of their night, in the middle of their trial, they began to praise God. आधी रात में परमेश्वर की वे स्तुति आराधना करने लगे. And all the other prisoners are looking, who's singing? और जो बाकी जो लोग थे वहाँ वो देखने लगे कि कौन है ये जो गाना गा रहे We didn't हैं. even receive any food today. Who's that singing? आज हमें खाना भी नहीं मिला. ये कौन है जो गा रहे They हैं? were chained from head to foot, but instead of grumbling, they used their chains like a tambourine. जबकि वो ऊपर सर से लेके नीचे तक बंद थे जंजीरों में. उन्होंने उन जंजीरों को एक खंजड़ी की तरह इस्तेमाल किया बाजा बजाने के लिए. Their singing was so contagious, even God began to look down and say, hey, who's that singing? और उनका जो गाना था वो इतना अच्छा था कि यहाँ तक कि जो गार्ड थे वो भी देखने लगे कि कौन है. God began to tap his foot, and when God's foot touched the earth, because the Bible says heaven is his throne, the earth is his footstool. When his foot touched the earth, there was an earthquake, and every chain, every bondage that tied Paul and Silas and all the other prisoners were broken down. जब परमेश्वर ने उनकी स्तुति आराधना सुनी तो परमेश्वर अपने पैर को उस गाने में टैप करने लगे. और जब
जब परमेश्वर अपना पैर हिला रहे थे तो धरती हिलने लगी और उनकी जंजीरें टूट गईं और वो छुटकारा पाए। I'm preaching fast because I want to finish on time. मैं प्रचार जल्दी कर रहा हूँ समय के अनुसार। Maybe you're in the middle of a trial right now. हो सकता है कि आप परेशानी के बीच में You're ready होंगे, to throw in the towel. हो सकता है आप हार मानने के लिए तैयार But I हैं, want to encourage you, learn to praise and your breakthrough will come. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आराधना करें और परमेश्वर आपके लिए छुटकारा लेके आएंगे। Hallelujah. When Peter was put in prison, the church began to pray and he was released. But when Paul was put in prison, he learned to praise and God set him free. जब पौल को जेल में डाला तो परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना, स्तुति, आराधना करी जिसकी वजह से वे छुड़ाए गए। What am I trying to say? Instead of running around searching who will pray for me, get on your knees where you are. Begin to open your Bible. Begin to learn to praise God and see God's deliverance come through in your life. अगर आप कठिन परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर के सम्मुख गिर जाएं और अपनी बाइबल को खोल के परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना करें। Let me remind you of another story in the Bible. मैं आपको एक और कहानी बाइबल में दिखाना चाहता It's हूँ। found in 2 Chronicles chapter 20. You can turn there if you want. दूसरा इतिहास 20 उसका 21। There was a king called Jehoshaphat and he was declared war on by many other nations more powerful than he was. जेहोशाफात यहाँ पे एक जन है जिनके ऊपर एक लड़ाई बोली गई है। As Jehoshaphat begins to pray, God himself gives him a strategy. जब यहोशाफात प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर ही उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं कि कैसे युद्ध में जाना है। And I'll read for you verse 21. 2 Chronicles chapter 20 verse 21. Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से सौभाग्यमान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए कि उसकी स्तुति कर यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। I hope you understood that because the leading element of their attack formation was the worship band. आप इसको समझ रहे हैं कि जो उनका प्रमुख तत्व है वो है जब युद्ध में जाना है तो जो स्तुति आराधना का जो बैंड है वो सबसे आगे चलेगा। That's crazy, isn't it? कितनी अद्भुत सी बात Would है ये। any army today put their marching band in the front? No. क्या आज भी कोई सेना है जो कि एक गाने वाले बैंड को आगे रखती But है? here's the secret. Instead of looking around, they were looking up. और वो चारों तरफ देखने की जगह वो ऊपर स्वर्ग को देख रहे Instead थे of focusing on the problem, they focused on God. और अपनी समस्या में केंद्रित होने की जगह वो परमेश्वर पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे When you're थे। surrounded by hopeless circumstances, which way are you looking? जब आप चारों तरफ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे कोई आशा नहीं है तो आप किस दिशा में देख रहे When हैं? the doctor gives you a bad report, जब डॉक्टर आपको जो है सही रिपोर्ट नहीं देते when your boss makes unreasonable demands, या आपके जो बॉस हैं वो अनुचित मांगे करते when you हैं run out of money before you run out of the month, और आप महीने खत्म होने से पहले आपके पैसे खत्म हो जाते which हैं, way do you look? आप किस तरफ देखते हैं? The direction of praise is up. जो स्तुति आराधना की जो दिशा है वो है ऊपर। A long story short, एक छोटी कहानी verse 22, as they began to sing, the Lord set ambushes against the other armies. और 22 वचन कहता है घात लगाकर हमला And God gave them a great victory in the valley of Beraka. और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी विजय दी उस वादी में बराका की। I would really wish I had more time to get into this story. मेरे पास और समय होता इस कहानी में जाने के लिए, But listen, they sought the Lord for one day, but God gave them 3 days of victory. उन्होंने परमेश्वर को एक दिन के लिए ताका और परमेश्वर ने उन्हें 3 दिन की विजय दी। I want to finish with a story. मैं एक कहानी के साथ खत्म A करूंगा। story that happened in the year 1799 in Austria. और ये एक ऑस्ट्रिया देश में
1799 साल में हुआ। in the town of Feldrick एक समय था जब फेल्ड्रिक थे। on an Easter morning. ईस्टर की सुबह The army of Napoleon had surrounded this little town. जो नेपोलियन की जो सेना थी उन्होंने इस छोटे शहर को चारों तरफ से घेर लिया And था all the citizens were ready to raise the white flag of surrender. और जो उस छोटे से शहर के लोग थे वो हार मानने के लिए तैयार थे। But the bishop of that church had another agenda. लेकिन जो बिशप थे कलीसिया के उनके पास एक प्लान था। He said, "This is Easter, the उन्होंने- day of God's resurrection. उन्होंने कहा आज ईस्टर है, आज के दिन परमेश्वर जिलाए गए थे। We must have one moment of triumph at least." हमें कम से कम एक छोटी सी विजय होना है। He said, "If you want to surrender, that's fine, but at least let us ring all the bells of Easter before we do." उन्होंने कहा कि हार मानने से पहले हम जो चर्च में जो घंटियां हैं उन सारी घंटियों को आज हम बजाएंगे। People agreed fearfully. जो लोग थे वो डरे हुए थे लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ बोला। As the church bells began to ring, a sense of celebration, victory began to fill the air. लेकिन जब उस कलीसिया की घंटियां बजने लगी तो जो उसकी जो आवाज थी वो ऐसी आवाज थी जैसे कि विजय की। Napoleon's army was confused. What could this mean? जो नेपोलियन की सेना थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई कि ये क्या है। They thought in the middle of the night, the Austrian army had come to fight for them. तो उन्हें ऐसा लगा कि जो उनकी जो सेना है वो रात में ही शायद आ गई है उनके लिए लड़ने के And लिए। even before the bell stopped ringing, Napoleon's army broke ranks and fled for their lives. पहले कि वो कुछ करें उन्होंने पीछे हटके दौड़ने की कोशिश करी। Just like the story of Jehoshaphat, the story of what happened in Feldrick in Austria is a powerful reminder of the power of praise. जैसे कि यहोशाफात की कहानी देखते हैं उसी तरीके से जो फेल्ड्रिक की जो कहानी हम देखते हैं कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं उसमें कितनी ताकत है। Praise is a response of faith towards His precious promises. और जो स्तुति आराधना है वो विश्वास के समान है जो कि हम स्वर को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देंगे। When you praise God, you're agreeing with God. जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर के साथ आप सहमत हो रहे होते हैं। Praise is not just giving thanks to God for what He has done, but it's giving thanks to God in advance for what He is going to do. धन्यवादित का ये मतलब नहीं है कि आप उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो हो चुकी हैं, लेकिन उन बातों के लिए धन्यवाद करें जिनका अभी भी आपको उत्तर नहीं मिला है। I don't know what you're going through today, मैं नहीं जानता आप किस उससे आज गुजर रहे but I हैं, want to encourage you लेकिन मैं आपको उत्साहित करना in your चाहता हूँ। moment of difficulty, कठिन समय in में, your moment of trial, परेशानी के समय में praise God. परमेश्वर की आराधना Maybe करें। you're believing for an unsaved family member. हो सकता है आप उस परिवार में उस जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि बचाए नहीं गए हैं। Instead of nagging them, praise God, say, "Father, I thank you because your word says, as for me and my house, we will serve the Lord." उनको तंग करने की वजह परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना के साथ धन्यवाद करें और वचन बोलें कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेगा। Maybe you don't have a job, you're praying for a promotion or a breakthrough. Say, "Father, I thank you that promotion is mine in Jesus' name, that breakthrough is coming." हो सकता है आप नौकरी के लिए या पदोन्नति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज आप विश्वास के साथ धन्यवाद करें कि आपको मिल गया है। There is nothing impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। When you learn to praise, जब आप सीखते हैं धन्यवाद करना, it unlocks the wonder-working power of God. तो वो उस बात को खोल देता है जो कि चमत्कार के काम आपके जीवन में लाता So I है। want to encourage you, when you're grateful, it has a pleasing aroma.
तो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो वो एक सुंदर महक के समान है, Not just for the Lord, for everyone around. सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं लेकिन सब जनों के लिए जो आपके आसपास हैं। When you're grateful, it releases the power of God. जब आप शुक्रगुजार हैं तो वो परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में खोलता है। When you're grateful, it breaks the spirit of heaviness. जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो जो वो भारीपन की आत्मा है परमेश्वर उसे तोड़ देते हैं। Too many people have allowed the enemy to burden them unnecessarily. बहुत लोगों ने शत्रु को जीतने दिया है आपके ऊपर भारीपन लाने में। Turn it into praise today. उसे आज आप स्तुति आराधना में Number बदल 4, दें। praise brings breakthrough. और जो स्तुति आराधना है वो छुटकारा और विजय लाती Have a है। thankful heart. धन्यवादित का एक हृदय Be होना thankful चाहिए। to people around you. जो चारों तरफ लोग हैं उनके साथ धन्यवादित हों। Don't always walk with your head in the clouds. हमेशा ऐसे ना चले जैसे आपका सर बादलों में है। Appreciate the little things. जो छोटी छोटी बातें हैं उनको धन्यवादित करें। God loves it. परमेश्वर उसे पसंद करते हैं।